ان حالات میں چیف صاحب کا یعنی کیونکہ حالات کی وقت وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اگر کسی وقت میں فیلڈ مارشل ایوب خان اگر کہیں یہ جاتے ہوں گے چرچ میں تو وہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اس وقت کا ماحول آج جبکہ بالکل قوم ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور یہاں پر ذات پات نسل رنگ اور مذہب کا اس طریقے سے یعنی وہ بنا ہوا ہے خبیر کہ اسے مطلب ہے کہ وہ آخر ختم ہو جائے گا. خبیر کے بعد کیا ہو جائے گا کہ وہ اٹا خراب ہو جائے گا. لیکن اس وقت چیف صاحب کا جانا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. اور دوسرے چرچ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چرچ میں چلے گئے چرچ آف پاکستان کیونکہ یہاں پر بہت سارے فرقے ہیں. جیسے شیعہ ہوتا ہے, سنی ہوتا ہے, وہابی ہوتا ہے, بریلوی ہوتا ہے, دیوبند, نقشبند, چگڑالوی, قادری پنی, کون سے. اسی طرح ہمارے میں بھی ہے کیونکہ وہ گئے تھے چرچ آف پاکستان. حالانکہ وہ ان کا وقت چرچ آف کرائسٹ یعنی وہ کسی بیپٹسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے, چرچ آف کرائسٹ میں گئے ہیں اور پھر ان کے حلقے میں کینٹ میں ہے تو وہاں پر وہ گئے ہیں. اس لیے ہمارے 7 ڈے کیتھولکس, پروٹسٹنٹ, پائی مشن جی کئی مشن ہیں, سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, چرچز کو کرنا چاہیے. یہ میرا کام نہیں ہے لیکن چرچز نے شاید اس لیے نہیں اپریشیٹ کیا کہ ان کے چرچ میں گئے, سارے چرچز سے نہیں آئے. لیڈر یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے چرچ میں گئے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ چیف آف آرمی جو ہے وہ کسی بھی چرچ میں گئے ہیں. اس سے جھوٹ, نفرت اور تعصب ختم ہوتا ہے. پاکستان غریبوں کا یہ نعرہ ہے. اور یہ بات اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد میں ریلی نکالی اور خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس کی آواز پوری دنیا میں گئی. آج بھی یہ پنڈی ہے, پنڈی پریس کلب میں یہاں آواز, یہاں پریس کے الگ لوگ ہیں, یہاں پر ایجنسیاں ہیں, یہاں پر آئی پی آئی ہے, آئی ایس آئی ہے, سی آئی ہے, تمام ایجنسیوں میں ہماری رپورٹ جاری ہے. آپ کو اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہمیں جابز نہیں مل رہی. اس وقت ہمیں سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ عزت. کیا چاہیے؟ عزت اگر ہوگی تو سب کچھ ہوگا. جب ہماری کوئی عزت, پولیٹیکلی تو ہماری زیرو ہے, پولیٹیکلی ہم یعنی فیلڈ سے باہر ہیں, لیکن ہمارے اپنے غدار جو ہیں جو پارٹیوں سے جا کے دینی. مجھے کل نون والے بتا رہے تھے اور بلکہ دوسرے بھی کہ اس دفعہ یعنی ہندو جو ہے وہ ہی سارے لے گئے کیونکہ مال کے سر پر یعنی سیٹیں بکتی ہیں. اس لیے کھڑے ہو جاؤ. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لیڈر نہیں ہوتا جو اپنی قوم کے بارے میں, لیڈر کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھتا ہے, اس کے اندر خواب ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد میری قوم کا کیا بنے گا. یہ نہیں ہوتا. ہم نے جس طریقے سے ہم نے وہاں اسلام آباد میں ورک کیا ہے, خدا کا شکر ہے خدا کا کہ ہمارے پاس وہاں پر پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے. اگر گیس نہیں ہے تو ہم نے گیس کے لیے مجھے امریکہ میں بھی فنکشن کرنا پڑا تو میں امریکہ میں بھی فنکشن کروں گا. میں نے کہا تھا کہ جب آئی نین میں گیس لگے گی تو ہم جا کے بیٹھ کہاں بجائیں گے؟ امریکہ میں بھی بجائیں گے. اور قائدین کے مزار پر بھی گئے. کس کو کہا تھا کل؟ سی ڈی اے کے جو یعنی چیئرمین صاحب نے اپنی ٹیم بھیجی تھی, ہم کمیٹی روم میں گئے تھے. ہمیں کیا چاہیے؟ عزت چاہیے. بجلی کیا ہے؟ ابھی پیر ماریے پہاڑی کر سکتے زمین تو, لیکن اگر تجھ میں رائی کے دانے جتنا ہی مانو اور تو پہاڑ سے کہے تو پہاڑ ہٹ سکتا ہے. اس لیے پاکستان, ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے پاکستان بنایا. یہ پاکستان کسی بات بھی ملکیت نہیں ہے. یہ ہم نے یہ جو پاکستان کا پنجاب کا حصہ ہے, اگر دیوان بہادر سنگھ نے یعنی جا کے باؤنڈری کمیشن کے سامنے کہا کہ ہماری تعداد میں سیوں کی شامل کی جائے تاکہ جغرافی تبدیلی جب آئے ہمیں اس کا شیئر ملے. لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو تھے, پولیٹیکل لیڈروں نے اپنی چودھرا کے لیے, یہ نہیں کہ مسلمان کرسچن, مسلمان بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو ہے میں نے اب کیا رکھی کہ سب چور ہیں
अच्छा चोर जो आके कहेगा मैं अच्छा चोर, मैं उसको ड्रॉप किया, बलूचिस्तान से ड्रॉप किया, सरहद से ड्रॉप किया, वफाक से ड्रॉप किया, थैंक्स गॉड कि वो अपने पूरे पाकिस्तान से ड्रॉप किया है। हम आज अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि चीफ साहब आपका इकदाम बड़ा अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकली अगर हमें पॉलिटिकली पावर हाउस से बाहर निकाला गया, ये निकले हुए हैं क्योंकि 226 आर्टिकल की वायलेशन हो रही है। यानी 226 आर्टिकल कहता है कि कोई मेंबर जब बगैर सीक्रेट बैलेट पेपर के बगैर असेंबली में नहीं जा सकता। ये बड़े बड़े जो यहाँ पॉलिटिशियन है उनको पता ही नहीं है, वो कहते जी की होया, मैं कह जो होया वो बाहर आ जाएगा, आप ही हो जाए बाहर आ जाएगा। यदि कुत्ते हो कुत्ती तो जुत्ती हो गया, आप ही होगे, क्योंकि कायदे ने कहा था कि अक़लियतों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। आज हमें बाहर निकाल रहे हो, अज सानू रवाया कल आप रहोगे, जेड़े तोड़ दे दिल बर्बाद होंगे। जिन्ना अज क्या चल रही है, हुकूमत चल रही है, जिथे रिक्शा भी नहीं चलता जिस तरह हुकूमत चलती पई है। बहरहाल आज क्योंकि चीफ साहब से हमने बातें करनी थी, ये चीफ साहब के कहते सुनानी धी नूं ते लानी नूं नूं। असी चीफ साहब ने बता रहे हैं कि आपका चर्च में आना बड़ा जरूरी है, हमारा असेंबली में जाना बड़ा जरूरी है। अगर आप चर्च में आएंगे तो फिर आपको हमारी कम्युनिटी को असेंबली में इलेक्ट होकर ले जाना होगा। अगर आप कहें कि हम तुम छले बने रहे, एडे भी सी भोले नहीं है कि भोली अंदर आ जाओ, कहते मैं भी भोली नहीं के अंदर आ जा, असि एडे भी भोले नहीं है। अप्रिशिएट जरूर करेंगे, लेकिन चीफ साहब के इस इक़दाम को सराहेंगे। चीफ साहब जिंदाबाद, पाक फौज पाक फौज, लेकिन हमारे हकूक भी देने होंगे। अमन भी हो और जुल्म भी हो, ये कैसे मुमकिन है? लिहाजा मैं बच्चियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਕੂਕ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ मैं 35 दिन हड़ताल की थी, जेल कटिया, 7 वाली जेल कटी, मार्शल आर्ट घोड़े उदों पहनते सन। अज ते बड़ा सब चोर है, सब चोर है। मैं अच्छी पार्टी जो अच्छी चोर है मैं उसे वोट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ये कहें मेरे पास एक ही जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असला लाइसेंस नहीं, शराब परमिट नहीं, आज तक ना मुझ पर किसी ने FIR कटाई है, ना मैंने किसी पर FIR कटाई, ना आज तक मैंने असले को हाथ लगाया। मैंने सारी कच्ची बाजी को भाग कर खूब दिलवाए, बिजली दुआई, पानी दुआई, एक ही जमीन नहीं मैंने कब्जा किया, इसलिए कि मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ, पाकिस्तान का मालिक हूँ, इसलिए मालिक हूँ कि अफराद के हाथों में कौम की तरतीब, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। पाकिस्तान गरीबों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है। ये मैं आखिर में, क्योंकि वक्त की कमी है, आखिर में मैं पास्टर सुभाष साहब से कहूँगा कि वो बरकत से दुआ से। इस वक्त कशीदगी है और कुछ ममालिक ये चाह रहे हैं कि इस कशीदगी का फर्ज अगर ये कशीदगी खत्म नहीं होती तो दोनों ममालिक पर और इस खिते पर इसके क्या असर? डेफिनेटली जी, क्योंकि हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क है और गुआंढी जो है बिल्कुल, क्योंकि हमें बाहर जहाँ खतरात होते हैं वो बिल्कुल जो पड़ोसी होता है, और हमारे चारों तरफ हम एक दुश्मन के घेरे में हैं। अफगानिस्तान हमारे पास है, उसके बाद इंडिया हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, और कुछ जो बड़ी कुव्वतें, बड़े चौधरी, यदि कोई तरह अप्रिशिएट कर रहा है। अमेरिका ने किसी अंदाज से अप्रिशिएट किया है, चाइना ने मसालती अंदाज से कहा है कि मैं मसालत करवा दे। तो ये जो है मैं समझता हूँ बड़ी गेम है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी देर तो रणनीति पे है। ये आपका भी इल्म में है, मेरे इल्म में उनका ये जो चीजें कुछ है, मैं नहीं चाहता कि इस टाइम मैं सिर्फ अप्रिशिएट करना है ऐसा चीफ ऑफ आर्मी नूं, और मैं नहीं चाहता कि इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे नकाब जिहड़े ने उन्होंने बड़ी बुरी तरह नकाब बेनकाब कर देना। लिहाजा मेरा ख्याल है क्योंकि अगे जिहड़ी कैपेसिटी है ना अगे बहन वाले दी छोटी है, लिहाजा
ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਰ सर ये कशीदगी और जो खेल है इलेक्शन पे इससे कोई असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, मुरतब तो पहले ही हुआ, मुरतब मुझे जो लग रहा है ये मुरतब आगे ही हुआ है, मजीद इसका मौका लिया जा सकता है, इससे बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं, मुरतब हुआ है। और जैसा साहब क्या आप ये समझते हैं कि दोनों ममालिक को बैठ कर इसका हल निकालना चाहिए? मेरा ख्याल जी इससे ज्यादा अच्छी बात कोई भी नहीं है। टेबल टॉक इसका सबसे, और फिर हमारे सारी जिंदगी हमारे ईरान से यानी फारस के टाइम से, शायद दारा के टाइम से, रजा साहब खोरज के टाइम पर हमारे उनसे मुनासिब रहे हैं, और ये मतलब शाह ईरान तो हमारे बहुत ही क्लोज में था। ये नहीं कि मजहब के लिहाज से कह रहे हैं, हमारी तहजीब के लिहाज से भी शाह ईरान, हमारी फारसी के लिहाज, हमारी जुबान के लिहाज से बहुत सारे हमारे लिंक्स हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए बैनुल अक़वामी तौर पर अगर अमेरिका, ये चाइना ये ना कहे, बल्कि सारे जो है ना अपना विटो पावर वाले, क्योंकि चाइना भी विटो पावर है, अमेरिका भी विटो पावर है, हमारे मेरा ख्याल 5 बड़ी कुव्वतें हैं जो विटो पावर है। तो मैं समझता कि इस वक्त हमें विटो पावर जो है उन्हें, हमें पाकिस्तान को और ईरान, क्योंकि ये एकदम चिंगारी जो है ये आग का शोला भी बन सकती है, ये खुद ब खुद नहीं बनी, इसके पीछे भी कोई अपना प्रोड्यूसर बैठे हैं जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मैं इस मौके पर यही समझता हूँ, हमारे बच्चों की खुराक पर, हमारी तनख्वाहों पर, हमारे आय पर, यानी बहुत कुछ हो जाएगा। तो आगे हम बड़े कमजोर हैं, बहुत हैं, हमें इस वक्त दुआ की जरूरत है कि हम खुदावंद की अमन की तरफ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खड़े होके पता लगे कि हम खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम किसके साथ खड़े हैं? पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी। आपने पाकिस्तान और मसीह बरादरी के एक उम्र जो है वक्त की सियासत में गुजारी, खिदमत हैं आपकी, लेकिन कभी आप घर जलाते हैं, कभी आप काट के कपड़े पहनते हैं, कभी आप पिंजरे में बंद होते हैं, कभी आप सर पे खाक डालते हैं। अब इलेक्शन आए हैं तो आप खामोश हो गए हैं, क्या आपने अपने सियासी कैरियर को क्लोज कर दिया? देखिए, आपको शायद पता नहीं है, मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। उम्र के लिहाज से भी मेरा ख्याल आपके लिए 226 आर्टिकल जो है उसकी वायलेशन हो रही है। इस वक्त जो खवातीन की 60 नशिस्तें खवातीन की और 10 अक़लियतें की, ये बगैर इलेक्शन के है। अब मैं बताएं कागज कहाँ जमा कराऊं जब सीक्रेट बैलेट पेपर ही नहीं है। आप जानते हैं बख्श साहब, आप इस कम्युनिटी को अच्छी तरह जानते हैं ना कि इनके बैलेट हैं नहीं है, तो इलेक्शन किससे लड़ूं? आपस में जुती हो जी, और जड़ियां हुण जुतियां हो रहे ने, कितना मजा आ रहा वेखण च। इन्हां ने हुकूमत बनने के बाद जी कुत्ती ते जुतियां होनी वो वेखना, क्योंकि अकलीतों के इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। ये कायदे मामले जनाबादी पाकिस्तान ने अलीगढ़ कॉलेज में कही थी ये बात, इसलिए हमारा इलेक्शन थी। अगर लड़न वाले लोग हमें इलेक्शन ये हम सिलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि मियाँ साहब आप ही बेचारे एप्लीकेशन दे देते ज़ियाउल्लाह को याद है आपको? ये ज़ियाउल्लाह का चौथा बच्चा था, ये आप पता है, जानते हैं जी, मुझे पता है एक सीट पर खड़े थे और ट्रैक्टर चलता होता सी, मगर उन्होंने मेहरबानी की इत्तफाक पर, तो लिहाजा साढ़े को नामों खिलाओ, बहुत मेहरबानी।